Number 7, in hepatitis B, the antigen indicating viral replication is hepatitis E antigen. ठीक है, the correct option is C. Hepatitis E antigen, that is the correct option. Question number 8, all of the following statements are true regarding hepatocellular carcinoma except 80 to 60% arises from cirrhotic liver. Yes, it is true. More common in Europe than Asia. Yes, it is true. PSA is used as a tumor marker for hepatocellular carcinoma. That is wrong. PSA is used for prostate specific antigen is used for prostatic carcinoma. Hepatocellular carcinoma के लिए you go for alpha fetoprotein. So the correct option is C. Question number 9. Which of the following given agent does not lead to chronic hepatitis? ठीक है. Hepatitis B, yes, it leads to chronic hepatitis. Hepatitis methotrexate की वजह से वेल इसका जो आंसर है दैट इज़ बी. ठीक है, इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर है बी. और उसकी रीज़न ये है कि हेपेटाइटिस ई कॉजिंग क्रोनिक डिजीज़ ये आ जाएगा दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज आर प्रोग्रेसिंग टू क्रोनिक हेपेटाइटिस एंड क्रोनिक लिवर डिजीज़. तो हेपेटाइटिस ई जो सा है उसका जीनोटाइप 3 ये कॉज करता है, ठीक है, लिवर डिजीज़ को. और अल्फा 1 ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में भी लिवर डिजीज़ हो जाती है और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी क्रोनिक डिजीज़ है. तो करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10. 44-year-old man presents with sudden onset of severe right upper quadrant abdominal pain. राइट अपर क्वाड्रेंट abdominal पेन. एसाइटीज़ है, टेंडर हेपेटोमेगाली है, हेमिटेमेसिस है. अल्ट्रासाउंड शोज थ्रोम्बोसिस ऑफ हेपेटिक वेन. अच्छा, थ्रोम्बोसिस ऑफ हेपेटिक वेन दैट इज़ बर्ड-कैरी सिंड्रोम. वेयर इज़ बर्ड-कैरी? दैट इज़ बी, बर्ड-कैरी सिंड्रोम. आपने हमेशा बात याद रखनी है कि एसाइटीज़ की डेवलपमेंट इज़ अ क्रॉनिक प्रोसेस एंड इट टेक्स वीक्स एंड मंथ्स. पेट में पानी जमा हो जाना इज कॉल्ड एसाइटीज़ एंड एसाइटीज़ टेक्स वीक्स एंड मंथ्स एक्सेप्ट फॉर वन डिजीज़ जहाँ पे रैपिड ऑनसेट एसाइटीज़ होता है 1 से 2 दिन के अंदर. दैट इज़ बर्ड-कैरी सिंड्रोम. ठीक है, एंड इट इज़ द थ्रोम्बोसिस ऑफ हेपेटिक वेन. व्हाट इज़ बर्ड-कैरी सिंड्रोम? दैट इज़ थ्रोम्बोसिस ऑफ हेपेटिक वेन, जिसकी वजह से हेपेटोमेगाली हो जाती है, एसाइटीज़ हो जाती हैं और ये सारे फीचर्स आ जाते हैं. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एसाइटीज़ हमेशा काफ़ी देर लगाता है ऑनसेट में, लेकिन बर्ड-कैरी सिंड्रोम इज़ द एक्सेप्शन जिसमें 1 से 2 या 3 दिनों तक एसाइटीज़ बहुत जल्दी से डेवलप करता है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी. क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following serum levels would help on distinguishing an acute liver disease from chronic liver disease? Acute liver disease को chronic liver disease से कौन distinguish करेगा? That is serum albumin number 1 और number 2 prothrombin PT. Albumin and PT distinguishes the acute liver disease from chronic liver disease. ठीक है. Question number D. Question number answer number D. Question number 12. Which of the following hepatitis causes significant perinatal transmission? Significant perinatal transmission. The correct option is hepatitis B virus. Option number B. Question number 13. An autopsy is performed on a patient that has died from fulminant hepatic failure. The liver weighs 90 grams. Histological examination shows acute hepatic necrosis with scattered neutrophils. Which of the following is the most common condition? That is most common virus causing this condition. That is hepatitis C. The correct answer is hepatitis C. Question number 14. Rokitansky-Ashkoff sinuses are microscopic findings in chronic cholecystitis. Option E. Mally bodies are characteristically seen in alcoholic liver disease. ठीक है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. अच्छा, अल्कोहलिक फैटी लिवर एक अलग डिजीज़ है. अल्कोहलिक फैटी लिवर दिस इज़ अ सेपरेट एंटिटी एंड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस इट इज़ अ सेपरेट एंटिटी. और अल्कोहलिक लिवर डिजीज़
जोन सी है, मैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस को ही कह रहा था, ठीक है। पैथोमा के अंदर जहाँ पे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस लिखा हुआ है बड़ी डिटेल में ये बात की हुई है। बिग रॉबिन्स के अंदर मेलरी हाईलाइन बॉडीज़ का जिक्र है, तो आप दोनों जगह पे देख सकते हो इसको, ठीक है। अल्कोहलिक फैटी लिवर इज़ एन अदर थिंग एंड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस इज़ एन अदर थिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 40-year-old woman complains of pruritus. She developed an elevated alkaline phosphatase and positive antimitochondrial antibody. The most likely diagnosis is primary biliary cirrhosis. प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर जोन सी है बाइल डक्ट की ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है, ठीक है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, सिरोसिस का मतलब होता है फाइब्रोसिस हो जाना। तो बाइल डक्ट में जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के साइन आएंगे, और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर एएलपी के लेवल्स बढ़ जाते हैं, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स के लेवल बढ़ जाते हैं, वो सारी की सारी ब्लड में जाती है, स्किन में डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से पोराइटिस होता है, जॉन्डिस होता है, ठीक है। अब दो बीमारियां हैं जिनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, सेक्युलराइजिंग कोलेंजियाइटिस। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर, और ये नेगेटिव होती हैं सेक्युलराइजिंग कोलेंजियाइटिस के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ओ, पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 को मिस तो नहीं कर दिया? Question number 17. A 70-year-old man developed hepatocellular carcinoma. The most likely enzyme that is elevated, that is alpha fetoprotein. ये मैंने PSA के सेक्शन में भी बताया था कि PSA इज़ फॉर प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा और लिवर कार्सिनोमा के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 18. विंडो पीरियड इन हेपेटाइटिस इज़ द इंटरवल बिटवीन। अच्छा, इसका आंसर है ए, लेकिन आपने पैथोमा पे जो टेबल दिया हुआ है वो उसको रट लेना है। हेपेटाइटिस के दो टेबल हैं, एक जॉन्डिस का टेबल दिया हुआ है, एक हेपेटाइटिस का टेबल दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ किधर है, दिस इज दिस, ये वाला टेबल। इस टेबल को आपने रट्टा लगा लेना है, इस टेबल में से बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल, इसको आपने रट्टा लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 18. Which of the serological marker of HBV hepatitis indicates recovery? तो इसका आंसर आपको इसी टेबल में से मिल जाएगा, ठीक है। ये जो टेबल है इसके अंदर आप देखो कि हेपेटाइटिस सी में आपको, जस्ट अ मिनट, इधर नहीं दिया हुआ, ये रहा, एंटी एच बी एस एंटीबॉडी इधर दिया नहीं हुआ सही से, एंटी एच बी ई एंटीबॉडी एंड एंटी एच बी एस एंटीबॉडी। तो इम्यूनाइजेशन के अंदर आपको आई जी जी मिलती है, इम्यूनाइजेशन के अंदर एच बी एस एंटीबॉडी के टाइटर में आपको आई जी जी मिलती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटी एच बी एस एंटीबॉडी। ये ज़रा पैथोमा थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन आपके पास जो पैथोमा होगी उसके ऊपर एंटी एच बी एस एंटीबॉडी लिखा होगा। Question number 20. A 26-year-old nurse developed fatigue, low-grade fever, polyarthritis, urticaria. 2 months earlier, she had cared for a patient with hepatitis. Which of the following findings are likely to be observed in this nurse? A negative hepatitis B surface antigen test, no. उसकी रीज़न ये है कि उसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस हो चुका है और उसको जॉन्डिस के फीवर आ रहे हैं। रोमाटाइड फैक्टर, नो, रोमाटाइड नहीं हुआ उसको, आर्थराइटिस हुआ। पॉजिटिव मोनोस्पॉट टेस्ट, नो। रिवर्सल ऑफ एजी रेशियो, नो, उसको एलिवेटेड ALT AST आएंगे, क्योंकि वो हेपेटाइटिस के पेशेंट को ट्रीट कर रही थी और मोर लाइकली उसने पिन प्रिक कर ली है कि उसको कैनुला लगाया, फिर डिस्कार्ड करते वक्त खुद को लग गया होगा। तो मोस्ट लाइकली इसको भी हेपेटाइटिस ही है, और इनके जो ALT AST होंगे वो एलिवेटेड ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21. द क्लासिकल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स पैटर्न फॉलोइंग एन इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ए इज़। हेपेटाइटिस ए इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन, उसके अंदर IgM एंटीबॉडी बढ़ जाएगी, ठीक है। इंक्रीज इन IgM
एंटीबॉडी, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी, उसके बाद आईजीजी आ जाएगी। दिस इज़ द स्पेसिफिक पैटर्न। ये है पैथोमा वाले टेबल पे भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रेजेंस ऑफ HbS-Ag, anti-HbC and often HbE is characteristic of early acute phase HBV. Again पैथोमा वाला टेबल। An increase concentration of alpha fetoprotein hepatocellular carcinoma. क्वेश्चन नंबर ए आंसर है इसका। कैरियर स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट इन हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए की कोई कैरियर नहीं होता। बी का हो सकता है, सी का हो सकता है, डेल्टा का हो सकता है, ए का नहीं होता। ए इज़ वेरी वेरी acute and it usually resolve in almost all the cases. Question number 25, right hypochondral pain radiating to the back is a complaint of a fertile fatty female of 40. The likely diagnosis is यार ये थोड़ा सा ट्रिकी है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन हो, ठीक है, और फर्टाइल फैटी 40 और एक और एफ होता है, उस फीमेल में हो जो फर्टाइल है, जो फैटी है, थोड़ी सी ओबीज है और जो अपने 40s में है। दिस इज़ मोस्ट लाइकली कोलिलिथियासिस गाल स्टोन, ठीक है, दिस इज़ मोस्ट लाइकली कोलिलिथियासिस। लेकिन पेन रेडिएटिंग टू द बैक का मतलब ये है कि माइट भी पैनक्रेटाइटिस है। पैनक्रेटाइटिस क्यों है? क्योंकि जब गाल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा स्टोन्स होते हैं, देर आर चांसेस कि वो स्टोन CBD में आ जाए, कॉमन बाइल डक्ट में आ जाए। कॉमन बाइल डक्ट में जब स्टोन आता है, इट विल कॉज ऑब्स्ट्रक्शन टू दी जो गैस्ट्रिक जूस, जो पैनक्रेटिक जूस है और जो बाइल है, ठीक है। बाइल की जो ड्यूडिनम में सिक्रीशन होनी होती है और जो पैनक्रेटिक जूस की पैनक्रियाज से निकल के ड्यूडिनम में सिक्रीशन होनी होती है, तो स्टोन इन CBD एक्चुअली हाइंडर्स एंड ऑब्स्ट्रक्ट द इवैक्यूएशन ऑफ दो सिक्रीशंस, जिसकी वजह से अक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो पेन रेडिएटिंग टू द बैक इज़ ए फीचर ऑफ अक्यूट पैनक्रेटाइटिस। तो लेकिन वो पेन होती है बहुत ज़्यादा सवियर, बहुत ज़्यादा सवियर। तो इन दोनों को आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है बड़े ध्यान से। इट कुड बी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वेरी इजीली, कि यहाँ पे अगर बहुत सडन सवियर सिम्टम दिए होते, इट कुड बी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। लेकिन राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन माइल्ड सी या मॉडरेट सी है, ठीक है, और फर्टाइल फैटी 40 फीमेल है, दैट इज़ मोस्ट लाइकली जस्ट gallstones. Question number 26, a 40-year-old man has severe abdominal pain for 3 days. Physical examination revealed rigidity of abdominal muscle. The pancreas shows chalky white fat necrosis. What is the most likely predisposing factor in the development of this disorder? इस पेशेंट को मोस्ट लाइकली पैनक्रेटाइटिस है, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का एक ही फीचर है, दैट इज़ अल्कोहलिज्म। दो मेन फीचर होते हैं इसके पैनक्रेटाइटिस के, एक गालस्टोन और एक अल्कोहल। गालस्टोन नहीं दिया हुआ, दैट्स व्हाई वी हैव अल्कोहल। 20 numbers. Question number 27. A 51-year-old male diagnosed with a decompensated liver disease suddenly starts vomiting blood and eventually loses consciousness. His wife finds him laying down on the bedroom floor. He has no prior history of hematemesis, bleeding, diastasis, and has not vomited prior to the appearance of blood. Which of the following is most likely cause of this man? इस पेशेंट को है डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़। डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। पैथोमा में आपको ईसोफेजियल वायरसिस बड़ा इजीली मिल जाएगा। ईसोफेजियल वायरसिस इज़ ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ DCLD। ये डिटेल में आप उधर से पढ़ लें। एकलेजिया इज़ ए नॉट कॉम्प्लिकेशन ऑफ DCLD, मेलिवाइस्टिया नॉट ए कॉम्प्लिकेशन, प्लमर विल्सन नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ DCLD, एंड जैंकर्स इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ DLC। इन पांचों सिनेरियोज में ओनली ईसोफेजियल वायरसेस आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ DCLD। ए जेनेटिक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म विल्सन्स, अन्य व विल्सन्स, एक ही बीमारी है पूरी हेपेटोलॉजी में जिसमें कॉपर का मसला होता है, विल्सन्स। क्वेश्चन नंबर 29. A 26-year-old malnourished female presents in OPD with abdominal discomfort and right hypochondrial pain, ठीक है, उसको डायरिया भी है 2 हफ्ते से। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन शोज स्पेस ऑक्यूपाइंग लिए,
Biopsy of the specimen shows abscess. Most likely it is liver abscess. Okay. Most likely organism is ant amoeba histolytica. एक और ऑर्गेनिज्म भी होता है, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा। ये दो ही ऑर्गेनिज्म है, एक पायोजेनिक लिवर अब्सेस कराता है और एक अमीबिक लिवर अब्सेस कराता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलैटिका इज कॉजिंग अमीबिक लिवर अब्सेस। ठीक है, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो आपने देख लेना है, एंड दैट इज कॉजिंग पायोजेनिक लिवर अब्सेस। Question number 30. A 65-year-old man develops periumbilical pain which then shifted to the right umbilical fossa. Physical examination temperature is this, rectally the abdomen is tender. Most likely it is acute appendicitis. Yes, it is acute appendicitis. Right fossa की पेन है, पहले umbilicus में थी फिर right fossa पे चली गई. This is acute appendicitis. Acute appendicitis. Diverticulitis के अंदर पारेक्टल ब्लीडिंग होगी, हेमराइड्स के अंदर पेन होती है, पैनक्रेटाइटिस के अंदर एपिगैस्ट्रिक पेन है और पायलोनेफ्राइटिस के अंदर फ्लैंक में पेन होती है, कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस आती है। ठीक है, ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एक्सेप्ट प्रोराइटिस इज नॉट अ फीचर। नहीं, प्रोराइटिस इज अ फीचर, प्रोराइटिस ही तो होगा। ठीक है, सीरम एआरटी बढ़ जाएंगे। इसके बाद आइसोनाइजिड जो सी है वो करवाती है। वायरल हेपेटाइटिस मोस्ट लाइकली काज है। सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस विल बी मार्कली रेज, यस इट इज़ ट्रू। तो प्रोराइटिस इज नॉट अ फीचर, प्रोराइटिस इज अ फीचर। 32. 45-year-old man presents with malaise, anorexia, vomiting. The physician noticed slight jaundice. Blood examination shows ALT, AST बढ़े हुए हैं. Alkaline phosphatase normal. AST, ALT बढ़ा हुआ है नहीं. AST ratio is AST is greater than ALT. इस सिनेरियो में AST is greater than ALT. आमतौर पे जब कोई भी हेपेटाइटिस होता है ना, कोई भी हेपेटाइटिस, तो उसमें ALT वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन AST. कोई भी हेपेटाइटिस हो, ALT वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन AST. लेकिन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अंदर AST वुड बी ग्रेटर देन ALT. ये अब कैसे होता है ये डिटेल की बात है, अभी के लिए ये याद रख लो, जब AST की वैल्यू बढ़ जाए ALT से देन इट इज़ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. ऑप्शन सी, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं. मेनली बॉडीज़ दी हुई हैं, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फॉर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. क्वेश्चन नंबर 33. ए 30-year-old मैरिड वुमन प्रेजेंट्स टू गायनेकोलॉजिकल ओपीडी फॉर रूटीन चेकअप. उसने OCPs लेने शुरू किए हैं. OCPs आर ए रिस्क फैक्टर फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. उसने स्लाइट डिस्कम्फर्ट इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की है. अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल जोन से हैं वो नॉर्मल है. अल्ट्रासाउंड शोज स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, शी इज़ फिजिकली फाइन. द लीजन इज़ मोस्ट लाइकली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. नहीं, हेपेटिक, सॉरी, दिस इज़ हेपेटिक एडिनोमा. OCPs से जो मोस्ट लाइकली डिजीज़ होती है दैट इज़ हेपेटिक एडिनोमा. जैसे ही OCPs लेने पेशेंट छोड़ देगा, हेपेटिक एडिनोमा विल रिग्रेस. ठीक है, OCPs आर द मेन रिस्क फैक्टर फॉर हेपेटिक एडिनोमा. जैसे ही पेशेंट OCPs लेना छोड़ देगा, द एडिनोमा विल रिग्रेस. ठीक है, सो इट इज़ हेपेटिक एडिनोमा. 34. A 12-year-old male child presents with pitting edema, ascites, prolonged bleeding from wound ascites. His biological parents are not known and he was adopted from an orphanage. His abdominal ultrasound shows cirrhosis, virology for HPV and अच्छा उसको सिरोसिस है, हेपेटाइटिस बी भी नेगेटिव है, हेपेटाइटिस सी भी नेगेटिव है. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज? मोस्ट लाइकली कॉज इज़ विल्सन. छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के अंदर आपको जॉन्डस मिल रहा है, ठीक है, और लिवर फेलियर के साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं. दिस इज़ मोस्ट लाइकली विल्सन्स. दिस इज़ मोस्ट लाइकली विल्सन्स. ये अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी भी हो सकता है, ये हीमोक्रोमाटोसिस भी हो सकता है. लेकिन अल्फ़ा 1 के अंदर आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी मिलेंगे और हीमोक्रोमाटोसिस के अंदर आपको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की हिस्ट्री मिलेगी. ठीक है, तो इसलिए ये अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी नहीं और ये हीमोक्रोमाटोसिस नहीं. दिस इज़ विल्सन्स. Question number 35. A 30-year-old male patient presents with dementia and hemibalism and deranged liver enzyme. On further evaluation, abdominal ultrasound shows cirrhosis of liver, viral serology negative. What is most likely diagnosis? This is Kessler-Fleischer ring in cornea. This is again Wilson's.
ठीक है। अब मैं आपको ना दो चार चीज़ें गिनाने लगा हूँ। विल्सन्स के अंदर जो पैटर्न होगा दैट इज़ हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट, सिरोसिस ऑफ लिवर, इसको आप लिख लें, सिरोसिस ऑफ लिवर प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, that is most likely in a young child or in an adult, it is most likely Wilson. Neurological involvement and liver involvement in a young child or an adult, it is most likely Wilson's. ठीक है। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट में डिमेंशिया, कोरिया, इसके बाद बिहेवियरल चेंजेस, इसके बाद एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स, पार्किंसंस लाइक डिजीज़। ठीक है, तो ये सारे के सारे जोन से हैं ये विल्सन्स में आएंगे। अल्फा एंटीट्रिप्सिन में लंग एंड लिवर इन्वॉल्वमेंट अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हीमाक्रोमेटोसिस के अंदर मल्टीपल रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की हिस्ट्री। सो दीज आर 3 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। तो इस पेशेंट को मोस्ट लाइकली विल्सन है, तो विल्सन की नेक्स्ट फाइंडिंग क्या होगी? कि फ्रिंग्स होंगी, अल्फा फिटोप्रोटीन नहीं होगी, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, और सेंट्रल साइनोसिस भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36, ए 3-year-old बॉय is brought to ER in a comatose condition. He had an episode of viral infection for which was given aspirin. अच्छा, this is री syndrome. चलो पढ़ देते हैं, अभी डायग्नोस नहीं बनाते। तो उसको एस्प्रिन दी गई बाय हिज मदर टू रिलीव द फीवर, बट हिज कंडीशन डिटोरिएटेड एंड लिटिल ही वाज ब्रॉट टू द ER. हिज ब्लड सैंपल वाज टेकन, डीरेंज लिवर एंजाइम, एंड मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज री सिंड्रोम. बच्चों में जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो उसमें आप एस्प्रिन दे दो, इट विल लीड्स टू लिवर फेलियर. वायरल इन्फेक्शन है, आपने एस्प्रिन दे दी बच्चों में, तो दैट विल कॉज लिवर फेलियर एंड दैट इज़ कॉल्ड एज री सिंड्रोम. इसीलिए बच्चों में आप एस्प्रिन नहीं देते, आप असीटोमिनोफिन देते हो, और ये आपने अपने फार्मा में भी पढ़ा होगा. क्वेश्चन नंबर 37, 50-year-old फार्मा मिनिकैडजन एनसाइड वाला चैप्टर. ठीक है, असीटोमिनोफिन के जो यूजेस हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि री सिंड्रोम क्या होती है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, 50-year-old मैन विद द हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल अब्यूज़. अल्कोहल अब्यूज़ ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, चलो नहीं ऑप्शन, लेट अस कंप्लीट द क्वेश्चन. अल्कोहल अब्यूज़ करता है, लीवर एंजाइम उसका ज़्यादा है, लीवर बायोप्सी पे आपको माइक्रोस्कोपिक फैटी चेंजेस मिल गए हैं. ठीक है, इफ़ द पेशेंट absence from further drinking, this condition will most likely regress. It is reversible. Fatty liver, alcoholic fatty liver is reversible. Steatosis is reversible. Complete regression will occur. Option C. Question number 38. A 40-year-old woman with polycythemia vera develops progressive severe ascites and tender hepatomegaly over a period of several months. Liver function tests are normal. Which of the following is most likely diagnosis? अच्छा, पॉलीसाइथीमिया वेरा है और इसको ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स इसको हुई है एसाइटीज और टेंडर हेपेटोमेगाली. लीवर फंक्शंस आर विद इन नॉर्मल रेंज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? वेल आई डोंट नो, लेकिन आई डोंट नो कि इसका हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन कैसे है, क्योंकि हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर बर्ड कैरी सिंड्रोम होती है और वो बहुत रैपिड होती है. ठीक है, लेकिन अक्यूट हेपेटाइटिस हो नहीं सकता क्योंकि लिवर एंजाइम्स है नॉर्मल. हीमाक्रोमेटोसिस नहीं हो सकता क्योंकि हिस्ट्री नहीं दी हुई. क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं हो सकता क्योंकि हिस्ट्री नहीं दी हुई. कार्सिनॉइड सिंड्रोम भी नहीं हो सकता क्योंकि कार्सिनॉइड सिंड्रोम के अंदर जीआई इन्वॉल्वमेंट भी होती है, लंग की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, जीआई इन्वॉल्वमेंट होती है, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है. तो बाय मेथड ऑफ एक्सक्लूजन रे हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन जाता है. ठीक है, इन ऑप्शंस में रे हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन जाता है. इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बन रही कि ये क्यों हो रहा है. ठीक है, क्योंकि हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन में बहुत जल्दी एसाइटिस होती है. Question number 39. A 65-year-old woman dies of metastatic liver disease. The liver autopsy shows multinodular vascular tumor histologically composed of anastomosing channel and anaplastic endometrial cells. The liver parenchyma tumor nodules appear normal. The histologist gives a preliminary diagnosis of angiosarcoma of liver. Which of the following risk factor is associated with this form of liver? That is exposure to vinyl chloride. एंजियोसार्कोमा का रिस्क फैक्टर क्या है? विनाइल क्लोराइड. क्वेश्चन नंबर 40.
A 45-year-old woman presents to the ER with severe upper abdominal pain, vomiting, एपिगैस्ट्रिक पेन है जो बैक की तरफ जा रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, दैट इज कोलेस्ट्रॉल एंड अल्कोहल। दिस इज अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, दिस इज अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है। अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के रिस्क फैक्टर हैं दो बड़े बड़े, कोलेस्ट्रॉल एंड अल्कोहल यूज़।